توہین الیکشن کمیشن میں فواز چودھری کو شوکاز نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے فواز چودھری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ فواز چودھری کے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن پیش نہیں ہوئے، کیس کی مزید سماعت 15 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن میں فواز چودھری کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فواز چودھری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے، جبکہ فواز چودھری کے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ اس کیس کی مزید سماعت اب 15 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے اور آئندہ سماعت پر فواز چودھری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا۔ جی بالکل، فواز چودھری کی جانب سے توہین الیکشن کمیشن کا یہ معاملہ ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی سماعت کی ہے۔ فواز چودھری کے وکیل فیصل چودھری جو ہے وہ کمیشن میں پیش ہوئے ہیں۔ فیصل چودھری کے معاون وکیل جو ہے وہ کمیشن میں آج پیش ہوئے ہیں، جبکہ نہ فواز چودھری پیش ہوئے نہ وکیل فیصل چودھری پیش ہوئے، جبکہ معاون وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیصل چودھری سیشن کورٹ میں مصروف ہے۔ فیصل چودھری کے معاون وکیل نے سیشن کورٹ کی کاز لسٹ جمع کرا دی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کے سارے مراحل سے گزر چکے ہیں، وہاں چلان ہوگا اور کیا ہے، یہ ایک بہانہ۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ ایک بہانہ ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، اگر فیصل چودھری نہیں آتے تو ان کو شوکاز نوٹس جو ہے اس حوالے سے جاری کرتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی ہے۔ وکیل فیصل چودھری جو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، الیکشن کمیشن نے فواز چودھری کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ کیس کی مزید سماعت 15 جون تک ملتوی کر دی ہے اور الیکشن کمیشن نے فواز چودھری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن میں کوئٹہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی سیکرٹری بلدیات کو 3 ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں تاخیری حربے برداشت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کچھ ہی دیر میں اس کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس شاہد وحید بھی 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ امانت گشکوری سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی امانت۔ جی سپریم کورٹ میں مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہونی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ ہے جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد اس اہم مقدمے کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جیسے منیب اختر، جیسے حسن اظہر رضوی اور جیسے شاہد وحید اس 5 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی جانب سے جواب اس کیس میں جمع کرا چکے ہیں اور وفاقی حکومت نے چیف جسٹس پاکستان سمیت 3 ججز پر اعتراض اٹھایا ہے اور تینوں ججز کو بینچ سے الگ ہونے کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر اعتراض اٹھایا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اور متفرق درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ تینوں ججز جو ہیں وہ اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہیں ان میں تینوں ججز کا ذکر ہے، ان کے کچھ رشتہ دار ہیں جن کی مبینہ طور پر آڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب بات کی جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی، سیکرٹری سپریم کورٹ بار اور صدر سپریم کورٹ بار نے درخواست انکوائری کمیشن کے خلاف دائر کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ حنیف راہی ہیں جنہوں نے انکوائری کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے اور ایڈوکیٹ حنیف راہی نے انکوائری کمیشن میں جو ارکان تھے انکوائری کمیشن کے، جن میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز تھے، ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات عائد کیے گئے تھے، تاہم اب اعتراضات کے خلاف ایڈوکیٹ حنیف راہی نے اپیل بھی سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، جبکہ گزشتہ سماعت پر سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جو بینچ پر اعتراض کی درخواست ہے اس پر نمبر لگانے کا حکم دیا تھا اور آج وفاقی حکومت کی جو درخواست ہے بینچ پر اعتراض سے متعلق اس کو بھی سنا جائے گا۔ تو چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر جو کہ آپ سے کچھ دیر بعد اس کیس کی سماعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
बुशरा बीबी के दोस्त फराह गोगी गाड़ियों की शौकीन निकली। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की तहकीकात जारी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर समेत पीटीआई के 25 रहनुमाओं के नाम पर गाड़ियों के तफसीलात महकमा एक्साइज ने नैब को भिजवा दी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के नाम पर एक भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं निकली। सबसे ज्यादा फराह गोगी के नाम पर 22 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हाजी अली मदद जतक की सरबराही में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हाजी अली मदद जतक की सरबराही में पीपीपी बलोचिस्तान के रहनुमाओं के वक्त में मुलाकात की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने वाले वक्त में रुकनी बलोचिस्तान असम्बली मीर सलीम खोसा, नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी, हाजी मलिक शाह, मीर अब्दुल रऊफ रिंद, फरीद रईसानी शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नैयर हुसैन बुखारी भी मौजूद थे। मुलाकात में बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत पार्टी अमूर पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू की गई। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इंतखाबात में न सिर्फ पंजाब बल्कि बलूचिस्तान में भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास शुरू हो गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इजलास में आइंदा बजट 2023-24 से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम तरीन इजलास जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर जो वज़ीर-ए-आज़म की जो माशी टीम है वो इसमें मौजूद है। वज़ीर कॉमर्स हैं, इसमें वज़ीर मवासलात हैं। इस इजलास में पंजाब के जो सीएम है मोहसिन नकवी, खैबर पख्तूनख्वा के जो निगरान जो सीएम है और सिंध के वो जो वज़ीर आला हैं वो भी इसमें शरीक हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से इजलास में आइंदा बजट 2023-24 से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस जो इजलास है इसमें वफाक का तरक्याती जो प्रोजेक्ट है, जो मनसूबे हैं उसकी जो तखमीना है, उसके साथ जो सूबों को जो तरक्याती फंड्स का जो मामला है उसका हुजम कितना होगा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज डिस्कस होंगी। कौन कौन से अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे फंड्स जो है उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी हैं, तमाम तर डिस्कशन हो रही है। और इस इजलास में जो है अहम फैसले लिए जाएंगे और उन फैसलों से मुताल्लिक भी जो है वज़ीर जो प्लानिंग है एहसन इकबाल वो तफसीली तौर पर जो है ब्रीफ करेंगे। आज के इजलास से मुताल्लिक ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ इस वक्त जारी है PM हाउस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबकि पाकिस्तान और IMF में बजट पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ़्त नहीं हो सकी है। वकास अज़ीम से तफसीलात जान लेते हैं। वकास, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है जिसमें आइंदा माली साल के बजट के जो अहदाफ है उसका जायजा लिया गया है और वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग दी है। ताहम IMF ने इन आदाद शुमार पर अदम इत्मीनान किया है और ख़ासतौर पर FPR का जो इस वक्त टैक्स रेवेन्यू हदफ 9,200 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है उसके ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं और IMF ने यह कहा है कि कम अज़ कम इसमें 1,000 अरब रुपये का मज़ीद इजाफा किया जाए और इसको IMF का जो FPR का हदफ है इसको 10,000 अरब रुपये से ज़्यादा रखा जाए। आज के जो मुज़ाकरात हुए इसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार शरीक हुए हैं और पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस में मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूटर जनरल की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त में डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुतलका ATC कोर्ट के जज को फरीक बनाया गया है।
डॉक्टर यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। बात करेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, जिना हाउस मुकदमे में मुलव्वस डॉक्टर यास्मीन राशिद का उनको मुकदमे से खारिज करने का जो इकदाम है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने पंजाब हुकूमत की ये अपील दायर की है और इसमें एक तो सदर दहशतगर्दी कोर्ट को और जो मुतलका जज है उसको फरीक बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिना हाउस में मुकदमे में मुलव्वस होने के वाज़ेह शवाहद मौजूद हैं और इस वाले से जियो फेंसिंग और फोटोग्राफिक का शवाहद मौजूद है। इस सदर दहशतगर्दी कोर्ट में उनके जिस्मानी रिमांड के लिए वहाँ पे प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की सज़ा की, लेकिन जो मुलज़मा हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद उनका जिस्मानी रिमांड देने के बजाय उन्हें मुकदमे से खारिज किया गया है। तो ये सदा की गई है कि सदर दहशतगर्दी कोर्ट का यास्मीन राशिद को मुकदमे से खारिज करने या डिस्चार्ज करने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर ये 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कल करेगा। जी ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी बजट 2023-24 में प्राइस बॉन्ड्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक प्राइस बॉन्ड्स पर 5% इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई। प्राइस बॉन्ड्स पर एडवांस टैक्स 15 से बढ़ाकर 20% करने की सिफारिश कर दी गई है। बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास बताइएगा। साल के दौरान एफबीआर को ये तजावीज़ दी गई हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है और उनको टैक्स नेट के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो कि नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस की जो शरह है वो भी बढ़ाने की तजावीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है। एफबीआर को ये तजवीज़ दी गई है कि आइंदा माली साल के बजट के दौरान जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस में इजाफा किया जाए, क्योंकि प्राइस बॉन्ड्स का जो काम हो रहा है वो तो एक टैक्स नेट में नहीं है और उसके ऊपर जो टैक्सों की शरह है वो भी कम है। एफबीआर को ये तजवीज़ दी गई है कि प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें एडवांस टैक्स इस वक्त 15% लगा हुआ है, इसको बढ़ाकर 5% किया जाए और प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर 5% तक कम अज़ कम जो टैक्सेस हैं इसमें इजाफा किया जाए। इसके साथ साथ जो प्रॉफिट आता है, शरह मुनाफा आता है, उसके ऊपर भी टैक्सेस को बढ़ाने की तजावीज़ दी गई हैं और ये तजवीज़ दी गई है कि शरह मुनाफा और जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी टैक्सेस कम अज़ कम 5% तक बढ़ाए जाएँ, क्योंकि शरह मुनाफा पर इस वक्त जो विद होल्डिंग टैक्स की शरह है वो 15% है। अब इसको मज़ीद 5% बढ़ाकर 20% तक करने की तजवीज़ दी गई है, क्योंकि एफबीआर को ये बताया गया है कि विद होल्डिंग टैक्सेस लगाने से जो गैर कानूनी काम हो रहा है वो रुक जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नेट से बाहर हैं वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। करप्शन केस में चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने का मजिस्ट्रेट का इक़दाम चैलेंज। महकमा एंटी करप्शन की इस्तदा पर महकमा प्रोसिक्यूशन ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। क्या इस्तदा की गई है, मलिक अशरफ से जानते हैं। जी बताइए। मलिक अशरफ मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस केस के हवाले से। बिल्कुल, जो महकमा प्रोसिक्यूशन उन्होंने चौधरी परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया है और इस वाले से निगरानी की दरख्वास्त दायर की गई है और एंटी करप्शन की सजा पे महकमा प्रोसिक्यूशन ने ये निगरानी की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें चौधरी परवेज इलाही को फ्रीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि चौधरी परवेज इलाही करप्शन केसेस में मुलव्वस हैं और जिसके वाज़ेह और ठोस शवाहद भी मौजूद हैं और उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए जो प्रोसिक्यूशन और एंटी करप्शन है उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश किया, लेकिन उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और मुलज़म की तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल करना कानून का तकाजा है, लेकिन उन्हें यह हक नहीं दिया गया। तो ये सजा की गई है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है जिस्मानी रिमांड ना देने का उसको कलअदम करार दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।